डिटेल्स जो हम शुरू में बात कर रहे थे, आपकी कुछ रिसर्चेस आई वेंट थ्रू एंड दे वर वेरी इंटरेस्टिंग। द वन आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम, हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की थी। द आइडिया वाज कि वी आर हैप्पियर देन आवर नेबर्स, बट इज दैट इनफ ओवरऑल पूरी दुनिया में व्हेन वी डू आवर कंपैरिजन? एंड हाउ डू यू एक्चुअली आइडेंटिफाई इफ ए नेशन इज हैप्पी और नॉट? वो मेजर किस तरह करते हैं आप लोग? KPIs क्या हैं उसके, एंड व्हाट डज दैट मीन फॉर अस? बिल्कुल. So जो the idea to measure happiness, I mean, the idea comes from the fact कि economics and economic indicators have been critiqued and criticized that uh, if someone is high up in the income ladder, if a country is high up in the income ladder, does that really mean that people are flourishing? There are so many countless examples where the country is flourishing, but the widest majority of them are not flourishing because the country is run or owned by some oligarchs or some people with just money. या inequality इतनी ज़्यादा है. So 50s से लेके 90s तक ये economic indicators का एक बड़ा बोलबाला था. People would talk about GDP and GDP per capita. They would also talk about इलेक्ट्रिसिटी यूज़ एंड वुड से कि जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ है वो वाली सोसाइटी अच्छी है. एंड देन डॉक्टर महबूबुल हक, अगेन अ पाकिस्तानी who rose to fame in the United Nations forums, he came up with this idea कि एक ह्यूमन डेवलपमेंट भी चीज़ है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं. एंड देन इन द 90s भूटान एक छोटा सा मुल्क है, वहाँ पर एक बुद्धिस्ट, द ओनली बुद्धिस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट शुरू किया कि हमें ना ह्यूमन डेवलपमेंट चाहिए ना हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए. वी आर स्ट्राइविंग दैट आवर नेशन शुड बी द हैप्पीएस्ट इन द वर्ल्ड. And technically they are also, right? They, I they mean, are they, yes. they're top every year in that happiness index. So that was the idea कि there is already a distinction कि economic, human, and then there is just a very basic thing that, I mean, what is all the effort that we are all doing for? It is to make ourselves happy and to Yeah, make at the people end of the around day, us happy. yes. So this whole science eventually, after doing a lot of focus groups, a lot of different questions, a lot of different observations of people, reached this conclusion that the simplest way and the most effective way to explain कि एक बंदा खुश है या नहीं है is just to basically just ask that person if you are happy or not. Yeah. And they realize that there could be examples where people would say they are happy but they're not. But this is the most easiest way to explain someone is to ask them. So ये एक सवाल है कि पूछा जाता है कि आप अपने आप को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि आप खुश हैं या नाराज़ हैं. Very tough question. And though. very tough question. So the same question is asked in 150 different countries across the world almost every year since almost year 2000. और इस सवाल के ऊपर पाकिस्तानी जो हैं वो कंसिस्टेंटली ना सिर्फ इंडिया से आके हैं, जो कि हम हर चीज़ में कोशिश करते हैं और इस एक चीज़ में हम कामयाब हैं, बहुत सी चीज़ों में नहीं हैं. इंडिया से आगे हैं, बल्कि हम डेवलप्ड वर्ल्ड से कि जो हमसे सिग्निफिकेंटली इनकम लैडर पे आगे हैं, जो हमसे सर्विसेज अवेलेबिलिटी में आगे हैं, एजुकेशन में आगे हैं, हम उन नेशन से भी सिग्निफिकेंटली हायर परफॉर्म करते हैं. तकरीबन 10 में से 7 पाकिस्तानी कंसिस्टेंटली कोविड और इकोनॉमिक डाउन टर्न के 2-3 साल निकाल दें तो ये शरह 6 से 7 पाकिस्तानी आउट ऑफ 10 जो हैं वो मुस्तकिल कहते हैं कि हम खुश हैं अपनी ज़िंदगी से. Do you think it's because we're delusional? Yeah, it's true when people say money can't buy happiness. So a lot of people, I mean, and I mean, I sometimes also feel that कि maybe we settle for too less. कि जो है बस सही है, हम मेहनत नहीं करना चाहते तो हम कहते हैं जो मिल गया तो ठीक है. I think I would explain, and a lot of people ask this question, how is it? I mean, it's very counterintuitive. It's partly counterintuitive because there is also, again, within this a gradation. Different Pakistanis feel differently around this. The more educated and the higher income you have, the less likely you are to say that you are happy. And the poorer you are, and the higher the likelihood that you are happier.
And the reason why I feel that this might be happening is because पैसा कई दफ़ा आपको जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो दुनिया भर की हैप्पीनेस स्टडीज़ हैं, जैसे हार्वर्ड हैज़ स्टडीड फॉर ओवर 100 years अ पैनल ऑफ मेंबर्स एंड देयर फैमिलीज़, तो उन्होंने 3-4 चीज़ें गिनवाई कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो यू हैव टू लिव इन अ फैमिली. Family, the more people who live with families are happier. People who are away from their families are not happy. You also have to exist with friends, and so family and friends. And the third that they count is कि आप किसी और के लिए कुछ कर सकते हो. यानी आप अपने लिए तो कर ही रहे हैं, मगर असल हैप्पीनेस इस बात से आती है कि आप ये कह सकें कि मैंने किसी और की ज़िंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट किया है. तो हमें महसूस होता है कि जो पाकिस्तानी सोसाइटी है उसमें ये तीनों चीज़ें आज भी एग्जिस्ट करती हैं, और समहाउ हमने डेवलपमेंट के लैडर पे चलते हुए भी इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगियों से नहीं निकाला. कई लोग इस आइडिया से को अच्छा नहीं भी समझते. जब हमारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि फौतगी हो गई है तो मैं गांव जाना चाहता हूँ. हाँ. और कई दफ़ा एक पढ़े लिखे पाकिस्तानी को ये बात अजीब सी भी लगती है कि अगर कोई डिस्टेंट रिलेटिव फौत हो गया तो क्यों कोई कहीं जाना चाहता है, या कोई अगर कोई डिस्टेंट रिलेटिव का बच्चा पैदा हो गया है तो क्यों कहीं कोई जाना चाहता है. तो इट सीम्स दैट मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज हैव प्रोटेक्टेड ऑन टू दीज की इंग्रेडिएंट्स कि वो फैमिली के साथ रहते हैं. जॉइंट फैमिली इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पाकिस्तान इवन नाउ. अगर आप यूनिटरी फैमिली में भी रहते हैं तो आपके दोस्त अहबाब और फैमिली कहीं करीब में ही रहती है. आप एक सवाल पूछा जाता है कि हाउ लाइकली इज़ इट दैट यू ईट अ मील विद योर फैमिली, तो पाकिस्तान रैंक्स रियली रियली हाई एज अपोज टू द डेवलप्ड वर्ल्ड, जहाँ पर लोग कम्यूट में बहुत वक्त लगा देते हैं. फैमिली को रन करने के लिए जो डिवीज़न ऑफ लेबर है बिटवीन मैन एंड वुमेन, उसकी नौयत बहुत मुख्तलिफ हो चुकी है. तो इन सम वेज दीज आर सम ऑफ द वेज वाई इवन दो वी आर पुअरर, सो हम पावर्टी लैडर पे और इनकम लैडर पे इंडिया से और बांग्लादेश से नीचे हैं, मगर इन दोनों मुल्कों से जब हम कंपेयर करते हैं the social culture basically the social culture, and I would think that we ought to own this social culture rather than be on a bandwagon of growth कि जिस